ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਬੁਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਆਪਦਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਕੇ ਥੋਮਸ ਮੈਥਿਊ, ਜੋ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਰਵੱਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕੇ ਥੋਮਸ ਮੈਥਿਊ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭਾਈ ਕੇ ਥੋਮਸ ਮੈਥਿਊ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਜੌਨਸਨ ਜੇ ਟਾਈਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ। इस आपातकाल स्थिति में आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है, आप लोग क्या कर रहे हैं? Some say we are studying. किसी ने कहा हम पढ़ाई कर रहे हैं। Some say we are working. किसी ने कहा हम काम कर रहे हैं। Something happened in England a few years back. कुछ साल पहले इंग्लैंड में एक घटना घटी। One great architect, Sir Christopher Wren, he was visiting the site of St. Paul's Cathedral in London. It's a famous cathedral, but the construction was going on. लंदन में सेंट कैथेड्रल करके एक चर्च है, वहाँ एक बिल्डिंग बनाने वाला, इमारत बनाने वाला व्यक्ति वहाँ विजिट किया। That is St. Paul's Cathedral, even that is there. वहाँ वो कैथेड्रल अभी भी है। So this architect, Sir Christopher, was talking to the workers. They do not know who he is. और वहाँ जो काम करने वाले सारे लोग और कस्टमर्स को आपस में बात कर रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति कौन है जो वहाँ मिलने आया है। He asked one stone mason, working on the stone, what are you doing? और उसने एक पत्थर काटने वाले से पूछा भी तुम क्या कर रहे हो? He said, I am chipping stones. और उसने कहा मैं पत्थर को आकार दे रहा हूँ। He asked another person, what are you doing? The same question. और उसी प्रकार के सवाल दूसरे एक व्यक्ति कारीगर से पूछे, तुम क्या कर रहे हो? He said, I am earning, £1 a day. और उसने कहा मैं तो रोज मेरी दिहाड़ी होती है, 1 पाउंड मैं कमाता हूँ। And he asked the same question to another person, the third person. और तीसरे व्यक्ति से ही यही सवाल पूछा भी तुम क्या कर रहे हो? You see, they do not know who he is, okay? क्योंकि देखो वो लोग नहीं जानते ये कौन है जो उनसे ये सवाल पूछ रहा है। Because he is the architect of the whole project, okay? कि वो व्यक्ति पूरे जो उस इमारत का जो नक्शा बनाने वाला व्यक्ति है। But without knowing who is asking the question, the third mason said, I am helping Sir Christopher Wren to build St. Paul's Cathedral. और ये जो तीसरा व्यक्ति था जो मिस्त्री था, उसने ऐसा जवाब दिया कि मैं क्रिस्टोफर हेल जो है, इस आर्किटेक्ट जो है, इस नक्शा बनाने वाला, उसको मैं मदद कर रहा हूँ ताकि ये कैथेड्रल जो चर्च है इसको बनाया जाए। All the three people said that is correct. क्योंकि तीनों ने जो पूछा था वो सब कुछ सही जवाब दिया था। But what did the third person said is very, very relevant, isn't it? और जो तीसरे व्यक्ति ने बोला वो सबसे हटके के जवाब था।
So we are asking, why, what are you doing in this earth? और उसने पूछा तुम इस धरती में क्या कर रहे हो? What should be the answer? उसका उत्तर क्या होना चाहिए? I am helping the Lord Jesus Christ to build his kingdom on this earth. और हमारा उत्तर ये होना चाहिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को उसकी राज्य को स्थापित करने के लिए मदद कर रहे हैं. That is important. ये है सबसे महत्वपूर्ण बात. Did you understand that? क्या आप इस बात को समझ गए? So in understanding God's purpose, you know what is the first thing? आपको मालूम है परमेश्वर के उस उद्देश्य को जानने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? You need to be saved. आप लोगों को बचाया जाना बहुत जरूरी है. I know for many of you this is like a KG class. और कई लोगों के लिए ये जो आज का जो क्लास है ये जो केजी क्लास के जैसे है. But this is very important. और ये बहुत इम्पोर्टेंट है. If you want to understand God's purpose in your life, you must be saved. अगर आपको परमेश्वर का मकसद मालूम होना है तो सबसे पहली बात है आपका उद्धार होना बहुत जरूरी है. Yeah, God's plan is peace and life. John 3:16 says. परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो है शांति और जीवन. But there is a problem. Man is separated. He is, a sinner. क्योंकि वहां एक परेशानी आ जाती है. इंसान परमेश्वर से दूर है और वो दूरी का कारण है पाप. But God himself did the remedy, that is cross. क्योंकि परमेश्वर ने ही उस पाप का एक निचोड़ निकाला, हल निकाला और वो है क्रूस. He died on the cross, but he rose again on the third day. वो प्रभु यीशु उस क्रूस पर हमारे लिए मारा गया और तीसरे दिन जी उठा. Now you can cross the bridge. अब आप वो जो पुल है उसको What? आप पार कर सकते हैं. What should be your response? आपका प्रत्युत्तर क्या है? John 1:12, we all know that those who receive him, accept him, they become the child, children of God. So Sure. man's response, your response must be receiving Christ. यौना रीति सुसमाचार उसका 1:12 में लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, कबूल किया, उससे उनका संतान होने का अधिकार दिया. ये हमारा उत्तर होना चाहिए. So to receive Christ, you need to do 4 things. अगर आपको प्रभु यीशु मसीह को अपनाना है तो 4 बातें याद रहनी चाहिए. First, admit that you are a sinner. That is, admit your spiritual need. सबसे पहली बात है कि आपको ये मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि आप पापी हैं. That is the first thing you have to do. ये सबसे पहली बात स्वीकार करना, मान लेना कि हम पापी हैं. And now, just a minute. 1 मिनट. Now, the second thing is repent. दूसरी बात है तौबा करना यानी पश्चाताप करना. Be willing to turn away from your sin. हमें पाप से मुड़कर वापस आना है. And believe that Jesus died for you. और तीसरी बात है विश्वास करना कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया है. And receive him into your heart and life. और उस महान प्रभु को अपने हृदय में उसे ग्रहण करना है. Make him the Lord of your life. उस महान प्रभु यीशु को अपने जीवन का प्रभु मानना है. Now you can check whether you have done that or not. Okay. अब आप इस बात को परख सकते हैं कि आपने ये बातें अपने जीवन में किया है उद्धार के समय या नहीं. If you have not done that, you can pray, Lord Jesus, I know I am a sinner. I believe you died for my sins and rose again on the third day. I turn away from my sins and I am opening the door of my heart and life. I receive you as my personal Lord and Savior. Thank you for saving. A simple prayer. अगर आपने ये इस उद्धार के तरीके को आपने नहीं किया, ऐसे प्रभु को नहीं कबूल किया, तो आप आज ये प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह जी, मैं समझ चुका हूं कि मैं एक पापी हूं. मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे पापों के लिए मारे गए और तीसरे दिन जी उठे और अभी इसी समय
मैं अपने पापों से मुड़ता हूँ और मैं आपको अपने जीवन के हृदय के द्वार पर खुदावन और जीवन में आपको अपना मुक्तिदाता और प्रभु मानकर स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए। आमीन। So, if you are anytime prayed that prayer, you can be sure that you have become the child of God. अगर आपने इस प्रकार प्रार्थना की है, प्रभु को अपने जीवन को में अपनाया है, तो इस बात का पक्का यकीन करिए कि आप परमेश्वर के प्रभु यीशु के जरिए उसके बेटे बन चुके, उसके संतान बन चुके हैं। So to confirm your decision, what does the Bible say? What happened? और ये जो फैसले को आपने पूरी पक्का सबूत के रीति से मान लिया है, तो बाइबल इस विषय में क्या कहती है? When we read John chapter 10 verse 9, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10:9 में लिखा है। what did Jesus say about himself? यीशु मसीह ने क्या कहा? We all know, so I'm not reading, but Jesus said, I am the door. और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं द्वार में हूँ। And what will happen when a person enters the door? और क्या होगा कि मैं अगर द्वार में, तो जो अंदर है वो क्या करेगा? I'm referring John chapter 10 verse 9, John's gospel. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10:9 में लिखा है। Jesus says he will be saved. Okay? और वहां लिखा तुम बचाए जाओगे। This is to confirm your decision. और ये तब आप बचाए जाओगे जब आप एक फैसला लोगे। Because when you received him, according to John 1:12, I became the child of God. You see, you became the child of God. जब आप यूहन्ना 1:12 के अनुसार आप उनके संतान बन जाते हैं, तो So you can say with assurance, according to John chapter 3 verse 16, I have what you have, eternal life. और उस यूहन्ना 3:16 के अध्याय के अनुसार उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये पक्का सबूत है कि आपको वो अनंत काल के जीवन प्राप्त हो चुका है। All young people, teens, they have to make sure that you are saved. जितने भी जवान लड़के लड़कियां हैं, बेटे बेटियां हैं, वो इस बात को पूरा पक्का करना है कि आप बचाए गए हैं या नहीं। How do you know that you are saved? आपको कैसे मालूम लगेगा कि आप बचाए गए हैं? You can say, I know because God said it in His word. आप कह सकते हैं क्योंकि परमेश्वर का जो वचन ये कहता है और उसे स्वीकार किया है। How do you know that you are a child of God? आपको कैसे मालूम कि आप परमेश्वर के संतान हैं? You can say, I know because I believe it in my heart. और आप कह सकते हैं हाँ मैं, क्योंकि मैं अपने हृदय में ये विश्वास करता हूँ। How do you know that you have eternal life? आप कैसे मालूम लगेगा कि आपके पास अनंत काल की जीवन है? You can say, I know because that settles it in my mind. क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि ये बात मेरे मन में है। You know why I am telling this? आपको मालूम है मैं इस बातों को क्यों दोहरा रहा हूँ? So many teens and young people, they doubt in between whether I'm a child of God or not. Am I really? और बहुत से जवान और बहुत से किशोर अवस्था के बच्चे ये समझते ही नहीं, इनको मालूम नहीं कि मैं सचमुच प्रभु का बेटा हूँ या बेटी हूँ। So if you are sure about that, अगर आपको ये पूरा यकीन है कि आप परमेश्वर के संतान है, तो what are the follow-up steps? First, you take a firm stand for Christ. Tell someone about your decision. कौन से कदम लेना बहुत जरूरी है कि मसीह यीशु में दृढ़ होके आप खड़े हैं कि नहीं। Tell your friends, your family. और उस दृढ़ होके खड़े होने के बारे में आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने मित्रों को, सहेलियों को आप ये कहें। Yeah, we know that some family there is opposition, persecution, all are that. ये बात बिल्कुल सच है कि कई परिवारों में बहुत से ऐसे उत्पीड़न होता है और विरोध हो रहा है। But you have to take a stand for Christ. आपको मसीह के लिए एक ऐसा एक कदम उठाना जरूरी है। Read and study God's word. परमेश्वर का वचन को पढ़ो और उसको सीखो, मनन For every young people we say, you take quiet time, at least 50 minutes every day morning.
spend in the presence of God. और परमेश्वर के हजूरी में जवानों से और किशोरों से हम कहते हैं कि सुबह उठ के 15 मिनट मनन शांत मनन करने की जरूरत है। Pray every day. रोज प्रार्थना करें। Identify with a Bible teaching church. और बाइबल का अध्ययन करने वाली कलीसिया के साथ अपने आप को जोड़े। Not any church नहीं where कोई भी the word of God is taught. उस चर्च के साथ जुड़े जो बाइबल की शिक्षा देखते हैं, बाइबल की सही सिद्धांतों को सिखाते हैं। Why? For worship, fellowship and service. क्यों? क्योंकि आराधना के लिए, संगति के लिए और सेवा के लिए। Now this is very important. और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। Now what are the evidences of salvation? और आपने उद्धार पाया, इसका क्या सबूत है? The first evidence is, have you believed in Christ Jesus? और पहला सबूत है मैं प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता हूँ। That is not only for salvation. और सिर्फ वो उद्धार के लिए नहीं है। All throughout our life, you have to believe that He is in control. He has very good plans for me. पूरे जिंदगी भर इस बात की गवाही देना है और पूरी जिंदगी भर इस बात को बताना है कि परमेश्वर का उद्देश्य और मकसद मेरे जीवन में क्या है। Now we know that so many families, because of the COVID problem, death is there, disease is there, sorrow, tears, everything is there. और आप जानते हैं आज के समय में, आज के इस माहौल में कितने लोग इस कोविड के कारण इस दुनिया से गए हैं, कितने ही अलग अलग प्रकार के परेशानी है, कईयों को काम नहीं है, नौकरी नहीं है और बहुत से अलग अलग प्रकार की दिक्कतें जो आप सब जानते हैं, इसका सामना हम सब कर रहे हैं। Of course, Jesus said, you have problem, you have tribulation in this world, but don't be afraid. I have overcome the world. Be cheerful. प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा था चेलों को, जब तक तुम इस दुनिया में हो तब तक बहुत सी कठिनाइयां, मुसीबतें होंगी और देखो मत डरो, ना इधर उधर ताको, मैंने इस दुनिया को जीत लिया है। See, because we are in this sinful world, we are also affected by all the natural problems and this and that. और जबकि हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया में होते प्राकृतिक जो परेशानी है उससे भी हम लोग जूझते हैं। But always believe that God has a best plan for you. और हमेशा विश्वास करिए कि परमेश्वर को हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक मकसद है। And another evidence of salvation is that, are you loving the Lord more than anything else? दूसरा जो सबूत है उद्धार का वो ये है, क्या तुम परमेश्वर से, प्रभु से प्रेम रखते हो? Are you reading his love letter? That is none other than the Bible. आप उस प्रेम पत्र जो ये प्रभु का वचन है उसको पढ़ते हो? Now, because it is a difficult time, that is why we are having Zoom meetings. But are you regular? Are you properly attending the Zoom meetings? Because if you love the Lord, you will do that. अगर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, क्योंकि हम हालात ऐसे हैं, हम आपस में मिल नहीं सकते, बल्कि ये जूम मीटिंग्स के जरिए हम मिलते हैं और सीखते हैं। क्या आप इस जूम मीटिंग्स में गंभीर रीति से आप भाग लेते हैं कि नहीं? What is your priority in life? आपके जीवन का मकसद क्या है? Now the third thing is obedience to God. और तीसरा है परमेश्वर के हुजूरी में आज्ञाकारी रहना। If you are saved, have you obeyed the Lord in the waters of baptism? और अगर आप बचाए गए, उद्धार पाए, क्या आप प्रभु के आज्ञाकारी होते हुए उस बपतिस्मा के जरिए आज्ञाकारी को पूरा किया है? There are so many commandments in this Bible. इस वचन में, पवित्र शास्त्र में बहुत सारे हुक्म दिए गए हैं। Are you obeying that? क्या आप वो सारे आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं? So that obedience very clearly says, whatever you know up to this time, you have to obey. It very clearly says, you are saved. It is an evidence. That's what I am telling. परमेश्वर के वचन में लिखा, जो कुछ इसमें लिखा, जो तो कुछ आप करते हो, तो उससे ये सबूत होता है कि आप परमेश्वर से
प्रेम करते हो और आप उद्धार के मार्ग में हो। And another thing is, you have to have a real love for the believers. Christians means not only nominal people known as Christians, but those who have Christ in their hearts. और आपस में प्यार करने के बारे में बताया है, प्रेम करने के बारे में, विश्वासियों से आपस में प्रेम करने के बारे में। विश्वासी कहते हैं कि ये नाम के विश्वासी नहीं, नाम के मसीह लोग नहीं, बल्कि वे जो मसीह को प्यार करते हैं और मसीह के बातों में मन लगा कर उनसे प्यार करने के बारे में बताया। That is why we love each other. We have a fellowship, you know. इससे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। Bible says you have to love even our enemies. That is another thing, okay? यहाँ दूसरी बात बाइबल ये बताती है कि हम अपने शत्रुओं से भी हम प्यार करें, वो अलग दूसरी एक प्यार के बारे में। And now another evidence is the presence of the Holy Spirit. और दूसरा जो सबूत है वो पवित्र आत्मा की उपस्थिति के बारे में बताया है। When do we get the Holy Spirit? Brother, it is mute. When do we get the Holy Spirit? Hello? Hello? Yeah. Yeah. The presence of the Holy Spirit. When do we get the Holy Spirit? हम पवित्र आत्मा को कब प्राप्त करते हैं? The same moment when you receive Jesus as your Lord and Savior, Holy Spirit's presence is there from that moment onwards. उस समय उस पल पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता, जिस समय आप ये कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन का मुक्तिदाता कबूल, उस समय से पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करता है। And every time when you commit a sin, before that, Holy Spirit will say, no, no. He'll put an alarm in our heart, isn't it? और कभी कभी एक विश्वासी जो पाप करता है, उसी समय पवित्र आत्मा आपको क्या है, चेतावनी देता है, अलार्म करता है, नहीं नहीं ये मत करना, ये नहीं बोलना। The Bible says Holy Spirit guides us in, you know, from left and right. He will say, this is the way, this is the way, you know, like that he instructs us. और ये पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है दाएं और बाएं, और कहता है कि नहीं ये मार्ग पे चलो, ये मार्ग में बोलो, ये मार्ग में खड़े हो, ऐसे हमें अगुवाई करता रहता है। And another evidence is, you see, if you're a believer, you must have a victorious living. और दूसरी एक जो हमारा सबूत है वो ये है कि हम एक जयवंत भरा हुआ एक जीवन जिए। See, I'm not criticizing anybody. Some people at the end of the year there is a special meeting. Some say it is a watch night service. Some say it is a concluding meeting. There people tell their testimonies, isn't it? मैं किसी को आरोप नहीं लगा रहा, पर कई लोग एक खास मीटिंग रखते हैं, संगति रखते हैं इस साल के अंत में, या कोई what is the testimony? और उस मीटिंग्स में क्या कहते हैं, उस सभाओं में what is the testimony usually people say? उस समय ज्यादातर लोग किस प्रकार की गवाही देते हैं? Last year I could not live victoriously. Next year I want to live victoriously. Please pray for me. और वो ऐसे कहते हैं, पिछले साल मैं जयवंत जीवन नहीं जी पाया, प्रार्थना करिए अगले आने वाले साल मैं जयवंत जीवन जी पाऊंगा। There is nothing wrong. तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। But if every year you repeat the same thing, there is something wrong. अगर आप हर साल ही इसी प्रकार की गवाही दें तो कैसे होगा? If that is the case, even if people pray, nothing will happen because you don't want to live victoriously. अगर ऐसा ही होगा तो लोग तो प्रार्थना करेंगे, पर आप एक विजयी रूपी जीवन जीना ही नहीं चाहते। It is possible, the Bible says. बाइबल कहती है ये मुमकिन है कि हर एक विश्वास करने वाला एक विजयी जीवन जी सकता है। But sometimes sin happens in our life. कभी कभी ये नामुमकिन जैसे लगता है। We have to confess. क्योंकि हमें हमारी गलतियों को हमें मान लेना चाहिए। Again we have to run the race. और फिर दोबारा से उठ के हमें आगे उस दौड़ में आगे बढ़ते जाना चाहिए। Why? Because God has a purpose for our lives. क्योंकि परमेश्वर का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।
Shall we read Acts chapter 13, verse 36? आइए प्रेरितों का काम Acts of the Apostles, chapter 13 and verse 36. 13 का 36 आयत हम पढ़ेंगे। What do we read there? It is about David, of course. और यहाँ दाऊद के बारे में हम पढ़ते हैं। Can anyone read? Just unmute your voice and you can read. क्योंकि दाऊद तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया और अपने बाप दादों में जा मिला और सड़ भी गया, परंतु जिसको परमेश्वर ने जिलाया वह सड़ने नहीं पाया। Yeah. इसलिए हे भाइयों, Verse 36 भैया only. Did you notice what it is? आपने ध्यान दिया यहाँ क्या लिखा है? David had a lifetime, a duration, a time. क्योंकि दाऊद के जीवन का एक काल होता था। See, we are all born in this world. देखिए हम सब इस दुनिया में पैदा हुए हैं। How many years we are going to live? कितने साल हम लोग जिएंगे? We are not sure, no? हमें पता नहीं कितने साल हम लोग सब जिएंगे। All people die, young people die, children die. So God has a plan for our life. और देखिए बुजुर्ग लोग भी मर रहे हैं, जवान लोग भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। इसलिए ये जाने कि परमेश्वर का हर एक व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य है। So God is telling David had a lifespan, a time. यहाँ परमेश्वर ने कहा कि दाऊद का एक जीवन की अवधि थी। Yes, many times he sinned against God, he repented, he confessed. But what is God telling about him? He served God's purpose in his time. और यहाँ देखते हैं कि दाऊद जो था उसके जीवन काल में उसने बहुत बारी पाप किया और पाप को उसने मान लिया, पश्चाताप किया, परमेश्वर के पीछे चला। और हम देखते पर वो हमेशा परमेश्वर का जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। I know I'm basically talking to teens and young people. मुझे मालूम है मैं किशोर और जवानों से बात कर रहा हूँ। But some seniors are also attending. और यहाँ कई है जो बुजुर्ग हैं वो भी इसमें शामिल हुए हैं। Are you serving God's purpose in your generation? क्या आप अपने पीढ़ी में परमेश्वर का सेवा या परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? You see, you cannot serve another generation because you have a lifetime. आप दूसरे पीढ़ी का सेवा नहीं कर, आपका जो जीवन की अवधि है, जीवन काल है, उसमें There's a time frame. करना है। There's a time frame. वहां एक टाइम का एक नियुक्त टाइम रखा हुआ है। After that, you die, isn't it? उसके बाद हम वो व्यक्ति मर जाता है। That is what it says. David, during his lifetime, he served God's purpose and then he died. और Okay. यहाँ लिखा है दाऊद ने अपने जीवन काल में परमेश्वर की इच्छा किया, उसके अनुसार सेवा किया और उसके बाद वो मर गया। Now let me ask our young people. Okay. मैं कुछ जवानों से कुछ सवाल पूछूंगा। Many of you are studying, isn't it? आप सब ज्यादातर आप लोग पढ़ रहे हैं ना? Why you want to study? क्यों आपको क्यों पढ़ने की जरूरत है? We don't have time to ask everyone, but I know you'll say, I want to get a job. Okay, very good. सबसे एक एक करके पूछने के लिए। Why you want to get a job? क्यों आपको नौकरी की जरूरत है? I want to get money. क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। Yeah, we need money, of course. हमें पैसे की जरूरत है, ये तो बहुत हकीकत बात है। Is that the ultimate aim? क्या यही हमारा मकसद है? Did God say that you all become accountants, doctors, engineers, nurses like that in the Bible? क्या परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? Only one thing it is said, you shall be my witnesses. सिर्फ एक ही बात हम सबों के लिए कहा है कि तुम मेरे गवाह बनना है। Yes, witness God, you can become you can select any profession, but ultimate aim is to witness Christ. आप कोई भी आपका प्रोफेशन हो, आपका काम हो, आप कोई भी कर सकते, पर मकसद ये हकीकत बात है कि आपको परमेश्वर का गवाह बनना जरूरी है।
That is very important. So you have to understand the will of God, God's will in your life. और आप ये बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर की इच्छा हम सबके जीवन में क्या क्या है. You need to have a vision about the future. भविष्य में एक दर्शन की जरूरत है. It is not dream or anything. It is looking to the future by faith. और ये कोई सपने के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि भविष्य में परमेश्वर के उस उद्देश्य को जान के करने के बारे में, दर्शन के बारे में बताया है. We have put the vision, the definition of the vision here. It is the quality of seeing what can be done, what ought to be done, and how to get it done in my lifetime. और ये दर्शन ऐसा होना चाहिए मेरे जीवन काल में परमेश्वर की इच्छा कैसे पूरा हो, परमेश्वर का उद्देश्य किस माफिक हो और कब तक हो जाए. It's not simply dream. ये सिर्फ एक साधारण सा एक कोई किसी प्रकार का सपना नहीं है. It is not imagination. ये सिर्फ हमारा मन का ख्याल नहीं है. To make it clear, it is dreaming the dream of God for me. और अगर ये हकीकत में होना है तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरे पक्के रीति से होना जरूरी है. So that vision must be a life vision. और ये जो दर्शन है वो हमारे जीवन काल में एक जीवित दर्शन होना चाहिए. If you have that vision, अगर आपके पास वो दर्शन है, then you have to add faith to that. Faith. इसके साथ आपको विश्वास को रखना जरूरी है. That is trusting the Lord for everything. और हर एक बात के लिए भरोसा रखना परमेश्वर पर. And that gives a goal. Sorry. That gives the goal. और यही हमारा मकसद है, लक्ष्य है. Today, so many people doesn't have any goal. आज के दिन में आप किसी से पूछो, कोई भी उनका लक्ष्य है ही नहीं. Somebody else is doing something, I am also doing something. और वो कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, मैं भी वो काम करूं. How many of you are praying to God when you are selecting, after 10th you are selecting science or, business management, accountancy or what? Are you praying and selecting that? और कितने बच्चे यहाँ हैं जो 10वीं के बाद अगर कुछ आपने सेलेक्ट करना चुनना है, या मैं सीए या मैं नॉन मेडिकल या मेडिकल या कॉमर्स करना, कितने बच्चे इधर है कि वो विषय चुनने से पहले आपने प्रार्थना करके प्रभु से मांगा है. So you need to have a goal, then only you will have to go in one way or other way to reach the goal. अगर आपके पास एक लक्ष्य है तो वो लक्ष्य के अनुसार अगर आप चुनते हैं प्रभु की अगुवाई के साथ, तभी आप उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं. So what is the will of God? इसलिए परमेश्वर का इच्छा हमारे जीवन में क्या है? Okay, the general will of God is that all may come to the knowledge of Christ. All may be saved. सामूहिक रीति से सबके लिए, सब इंसान के लिए परमेश्वर की इच्छा यही है कि सब लोग परमेश्वर के पास उसकी इच्छा के अनुसार आए. Don't be anxious, rejoice in the Lord. और हमेशा परमेश्वर के में आनंदित हो. Rejoice in the Lord and don't be anxious about anything. परमेश्वर में आनंदित रहे, किसी बात की फिक्र ना करें. You have to please the Lord. आपको परमेश्वर को प्रसन्न करना है. These are all general will. ये सब एक है साधारण का जो इच्छाएं हैं. But personally God has a plan for you. और परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से आपके लिए एक इच्छा है. So what is the will of God? और परमेश्वर की इच्छा क्या है? It is a plan of God regarding the whole universe. और ये परमेश्वर का एक मकसद है पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे दुनिया के लिए. See, we have so many, the galaxies and so many billions of stars and everything. और आप देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में कितने सारे तारंगण हैं, तारंगण के कितने सारे परिवार हैं. Yeah, so many planets and so many things. और कितने सारे ग्रह हैं और कितने सारे ऐसे चीजें हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता. Do you know that God has put some orbit for everything?
और आप जानते हैं हर एक जो ग्रह है, हर एक जो तारे, उस सबके लिए एक ऑर्बिट, एक घूमने का एक आदर रखा हुआ, स्थान रखा हुआ है। Yeah, where to go, how to go, God has a fixed plan. और परमेश्वर ने हर एक ग्रह को उसके सीमित स्थान में रहने के लिए आज्ञा दिया है। Suppose the planets and everything, decides tomorrow, let us don't have any orbits, we will do whatever we want. What will happen in the universe? अगर वो सारे ग्रह ऐसा फैसला कर लेते हैं कि नहीं जी हम उस स्थान से अलग होकर अपनी मर्जी के साथ चलेंगे, तो सोचो क्या होगा ब्रह्मांड का। You can imagine, no? आप सिर्फ ख्याल करें क्या होगा, फिर हमारी धरती किधर जाएगी। In the same way, God has a plan for each one of you, for me and you, for Jagadev ji, for Johnson ji, and all young people, young or old, everyone, God has a plan. इसीलिए इसी माफिक हर एक जितने हमें सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए, भाई जगदेव, भाई जॉनसन, ऐसे हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग परमेश्वर की एक योजनाएं हैं। If you don't understand that, what will happen? It is not only destruction for you, you are causing destruction to others also. अगर आप इस योजना को नहीं समझते तो क्या होगा, आप खुद परेशान होंगे और आप दूसरों के लिए एक परेशानी का कारण बनेंगे। So this is very important. और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है, Understanding God's will परमेश्वर के इच्छा को समझना about your personal life. आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए। Now for that we have to see this diagram, okay? और आप ये जो मानचित्र, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। God's will operates in 3 levels. और परमेश्वर का जो इच्छा है वो 3 भागों में कार्य करता है। Yeah, because we are talking to young people, so they can understand this. You see, there is a sovereign decrees. और यहाँ एक अलौकिक रीति इसका एक अदर है, एक भाग है। That is, all must have eternal life. All may choose or to accept or reject. So God says, it is your freedom. You can accept or reject, but all must have eternal life. Otherwise, you will go to hellfire. और यहाँ इस भाग में बताया गया कि सबको चुनने का एक स्वतंत्रता दिया गया है, चाहे आप प्रभु को अपनाएं या परमेश्वर का तिरस्कार करें। अगर अपनाते हैं तो आपको अनंत काल की जिंदगी मिलेगी, अगर आप उसे निकारते हैं या उसे तिरस्कार करते हैं तो आपका नरक पक्का है। So for your response must be, we trust him and obey him. That's all. आपका प्रत्युत्तर क्या है? हम उस पर भरोसा रखते परमेश्वर पर, और परमेश्वर के हर हुक्मों की हम आज्ञाकारिता के साथ पालन करें। Because he is a king of kings. He is sovereign. He is in charge of everything. When he says something, no change. और वो सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, अलौकिक परमेश्वर है और वो कभी बदलता नहीं। वो हमारे साथ जो कार्य करता है उसको पूरा करता है। And the down, the natural law, that level. और नीचे जो है, जो संसारिक है, apple trees produce apples, smoking produces lung cancer. और हम देखते हैं जो सेब का पेड़ सेब को देता है, और जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं और उसका खामियाजा क्या होता है कि उसको फेफड़े का कैंसर हो जाता है। Natural law, isn't it? ये है हमारे जो प्राकृतिक जो नियम है। We have to plan accordingly, okay? हमें उसके माफिक ही हमें योजना बनानी चाहिए। Or to say that you have a driving license, okay? उदाहरण के तौर पर आपके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस है। You are a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। You believe God will protect you. आप विश्वास करते प्रभु मेरी सुरक्षा करेगा। But as you go in the highway, will you close your eyes and then drive? क्या आप जब हाईवे में चलते हैं क्या आप आंखें बंद करके गाड़ी चलाएंगे? No, because you cannot say that God will protect me, I will close my eyes and go. There is definitely tragedy. आप ऐसे नहीं कह सकते परमेश्वर मुझे बचाएगा, परमेश्वर मेरे वायदे के अनुसार मेरा सुरक्षा करे और आंख बंद करके आप बस हाईवे में अपनी मर्जी से चल रहे हैं। आपका बहुत बड़ा एक्सीडेंट के साथ होगा। Yeah, for natural law we plan accordingly, that's all.
इसलिए जो प्राकृतिक जो नियम है वो हम उस प्राकृतिक नियम के अनुसार हमें योजना तैयार करना है। Yeah, we have to open our eyes, then drive, safely using or you put the seat belt, and then you have to pray also. Somebody else can come and hit our car, isn't it? और आपका प्राकृतिक रीति से क्या है कि आप हेलमेट लगाएंगे या आप गाड़ी चला रहे तो आप बेल्ट लगाएंगे, और उससे पहले आप प्रार्थना भी करना है कि प्रभु मैं जब चल जा रहा हूं तो आपकी सुरक्षा, नहीं तो क्या होगा, कोई आके आपको टक्कर मारेगा और आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। Yeah, we told you God's will operates in 3 levels. The middle level, that is very important for us. और आप देख सकते हैं परमेश्वर की इच्छा 3 भागों में कार्य करता है, और पहला भाग और आखिरी भाग देखा। अब ये जो बीच का भाग है उसमें क्या होता है? Conditional intervention. और यहाँ है एक समझौता के साथ एक कार्य है। If you want my opinion, ask me, I'll be glad to help you. अगर आपको मेरी सलाह चाहिए तो मुझसे पूछो, मुझसे कहो, मैं तुम्हें बताऊंगा। In our life we have so many decisions, isn't it? Decisions. हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसे फैसले हम ले लेते हैं। Are we asking God's opinion? और क्या आप परमेश्वर की सलाह लेते हैं? Things in this area, what we need to do is we pray and find out what is God's will. और यहाँ ऐसे अवसर पर हम देखते हैं भी क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, और उसके बदले आप परमेश्वर से पूछे, प्रभु मुझे इस अवसर में क्या करना चाहिए। Decisions about studies. जिस प्रकार से हम अपने पढ़ाई में कुछ फैसला लेते हैं। Decisions about marriage. और हम अपने विवाह में फैसला लेते हैं। Maybe you want to work for the Lord, but where to work, how to work, all this we have to pray and find out. और कोई लोग कहते हैं मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूँ, आप परमेश्वर से नहीं पूछते मैं कहाँ सेवा करूँ, किस जगह जाके सेवा करूँ। ये सारी बातें जो हमारे जीवन में होती, उसके लिए परमेश्वर से सलाह लेना बहुत बहुत जरूरी है। We are telling you that God has a purpose for your life. हम कहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक परमेश्वर का एक मकसद है। With regard to your decisions, if you are not asking God's help, He cannot help you. अगर आपके फैसले के मुताबिक अगर आप जाते हैं और परमेश्वर से नहीं पूछते तो आपको सहायता नहीं मिल सकता। See, no need to pray and fast. Lord, tell me it is your will to get saved or not. No need that. You just obey that. आपको इसकी जरूरत नहीं कि आप प्रार्थना करके उपवास करें, प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूँ, उद्धार पाऊं या नहीं, इसकी जरूरत नहीं। आप सिर्फ विश्वास करो और प्रभु को अपनाओ। Yeah, but for your life decisions, you have to pray and find out what is God's will for your life. और आपके व्यक्तिगत जीवन में जो कुछ बातें होती है, ये उसका फैसला लेते हैं, तो तब उसके लिए आप प्रार्थना करना है और परमेश्वर से उस विषय के लिए आप मांगना है ताकि परमेश्वर आपको अगुवाई कर सके। So this is the way God's will operates. और ये इस माफिक है कि परमेश्वर का जो इच्छा कार्य करता है। So whatever is your decision, there are some principles which you have to follow. जो भी आपका फैसला हो उसके लिए एक सिद्धांतिक बातें इसके साथ कार्य करते हैं। The first one is believe. What to believe? You already believe that Jesus as your Savior and Lord. But पहली बात है विश्वास। हमने पहले ही ये विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। But I told you throughout your life, you have to believe that God loves me. God has the best plan for my life. ये एक बार ही नहीं, ये हर जीवन काल तक ये विश्वास करना कि परमेश्वर मेरे से प्यार करता है, मुझसे प्यार करने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को मुझे दिया है। इसको जीवन काल तक विश्वास करते रहना है। Now during this pandemic times, some students are thinking, what will happen in 2022? We don't know. It is uncertainty. But you believe that God loves you. If you are God's child, God has His best plan for your life. और इस महामारी में कई बच्चे हैं, कई विद्यार्थी हैं, वो सोच रहे हैं 2022 में क्या होगा,
किस रीति से हमारी पढ़ाई होगी। ऐसे महामारी के समय में आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है और वो मुझे लज्जित नहीं करेगा और मेरे इच्छाओं को वो पूरा करेगा। Maybe you will be, you are anxious about your children, but God loves you. God has a plan for them also. और आप अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं कि उनके हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। उस समय आप परमेश्वर से प्यार करना, परमेश्वर को उसको प्यार को आप ऐलान करना है। Some are concerned about their marriage. और कई लोग अपने बच्चों के विवाह के बारे में चिंतित हैं। Maybe it is your own marriage, for young people. और जवान अपने विवाह के बारे में चिंतित है। You believe that God has his best plan for you. उस ऐसे समय में आप विश्वास करें कि परमेश्वर के योजना मेरे जीवन में जो योजना वो अच्छा और बड़ा है। Second principle is that you surrender your life completely. दूसरा जो बात है जो हमारे जीवन में हमें पूरी रीति से समर्पण होना जरूरी है। Some young people are like this. They will write whatever they want and they will ask, Lord Jesus, please, under there all needs, just put a sign. और पहले क्या करेंगे, एक जवान लोग एक बड़ा लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद नीचे वो साइन कर देते हैं और कहते हैं प्रभु जी ये बातें मैं तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ। But the Lord says, you sign under, I will write what is best for you. और प्रभु कहता है तू साइन कर दे पर मैं लिखूंगा उसके नीचे क्या तू तेरी जरूरत है। Maybe you want to study in some other place, but God wants you to study in some other place. और आपकी इच्छा होगी कि मैं अपनी भविष्य की जो पढ़ाई है मेरी वो मैं ऐसे कंट्री में करूं, और परमेश्वर की इच्छा क्या है वो कंट्री नहीं और कोई कंट्री में और कोई देश में पढ़ने की पप्पू की इच्छा है आपके जीवन में। So whatever is your will, you surrender that will to God's will. और आप क्या करना है, आपका जो भी आपकी इच्छा है वो सारी इच्छा परमेश्वर की इच्छा के जरिए आप समर्पण करें। Maybe regarding marriage, you think that he may be beautiful, he may be beautiful outside, it is very good, but how you know the heart of that person? और आप अपने शादी आपके व्यक्तिगत शादी के बारे में आप सोच रहे हैं या वो लड़की बहुत खूबसूरत है और वो लड़का कितना खूबसूरत होगा, ऐसी चिंता करते हैं, पर क्या आपको पता है वो लड़की और लड़के का हृदय का अवस्था क्या है? Hey, do anybody buy a house seeing only the outside paint only? क्या आपने कभी एक घर को खरीदा है, बाहर की रूप देके उसको खरीदा है? You have to get to know what is inside, isn't it? क्योंकि आप घर खरीदने से पहले उस घर के अंदर जाके देखते कि अंदर का कैसा हाल है। Yeah, for a house you can go and inspect the inside, but for a human heart you cannot do that. You depend on the Lord. क्योंकि घर के अंदर तो जाके आप निरीक्षण कर सकते हैं, पर एक इंसान का हृदय के अंदर आप नहीं जान सकते, इसलिए उस व्यक्ति परमेश्वर का हजूर समर्पण करने की जरूरत है। The third principle to find God's will for your specific will in your life is trust Him fully. और परमेश्वर का जो इच्छा हमारे जीवन में होना है तो उसके लिए एक बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम उस परमेश्वर पर संपूर्ण रीति से भरोसा करें। Yeah, it's just like putting all your weight on the chair. और जिस प्रकार से जब आप बैठे हैं आपने अपना पूरा वजन उस कुर्सी पर डाला हुआ है। Most of you are either sitting on the bed or on the chair, putting all your weight, believing and trusting that the chair will hold you, isn't it? अभी इस समय तो शायद आप लोग ये जूम मीटिंग में आप बेड पे बैठे होंगे, पर कई लोग चेयर पे बैठे होंगे। यही आपका भरोसा है कि ये जो बेड है या वो चेयर मुझे पूरी तरह से थामे हुए हैं। But sometimes it can fail. और कभी-कभी उसमें आप पराजय हो सकते हैं। It happened to me some time back, कभी-कभी मेरे जीवन में कई साल पहले घटना घट चुका है। I was attending a housewarming, that is thanking God for the new house. Everybody is sitting outside. There it was a little warm outside. और मैं एक घर के हाउस वार्मिंग के लिए गया था, नया घर बना था, उसके प्रार्थना के लिए मैं गया था, तो सब लोग बाहर बैठे हुए थे। Yeah, it was all plastic chair. वहाँ उस समय प्लास्टिक चेयर नहीं था वो।
Suddenly I noticed something wrong with my chair and I fell down. और जब मैं उस चेयर में बैठा हुआ था लकड़ी का, कुछ मुझे महसूस हुआ I felt ashamed. Anyway, और मैं- somebody gave me another chair. I was sitting on that. और उसके बाद वो दूसरा कुर्सी लेकर आए, मैं उस पर फिर बैठा। Everybody saw that, you know. और किसी ने उसको देखा। Now suddenly another man also fell down. Then I was happy. That is the way, you know, it happens. और उसके बाद मैंने देखा एक और व्यक्ति ऐसे ही कुर्सी में से गिर पड़ा। What I'm trying to tell is, you know, it was warm outside. The plastic chair, the leg was bent, and you know, that's why it cannot hold. But we usually trust all the chairs. It may be failing, but God will never fail you. और क्योंकि बाहर जो बैठे, बाहर वो गर्मी थी, इस करके वो जो प्लास्टिक चेयर वो बाहर सह नहीं पाया, इसलिए वो क्या हुआ, एक एक करके उसका जो पैर है वो मुड़ जाता था। इसलिए आजकल हम क्या करते हैं कि हम हर एक जहां हम बैठते हैं उस कुर्सी पे पूरा भरोसा रख देते कि वो हमें पकड़े रहेगा। You can trust the Lord Jesus for all throughout your life, fully, not half-hearted. 100% you can trust Him. आप अपने जीवन काल में आप प्रभु यीशु मसीह पर संपूर्ण भरोसा रख सकते हैं। हर एक विषय के लिए प्रभु के हाथ में भरोसा रखते हैं, वो आपको गिरने नहीं देगा। Now, what is the fourth principle? और चौथा जो प्रिंसिपल क्या है? What is that? Renewal of mind. और चौथी बात है आपके मन के नया होना। Romans 12 says you have to renew your mind. रोमियो 10 में लिखा है कि आपको अपने मन को नया करना है। Why? You want to recognize God's voice. क्योंकि जब आप मन के नए होने से क्या होता है, आप परमेश्वर की आवाज को पहचान जाते हैं। Many voices come. You do not know which one is from God. कि आपके जीवन में बहुत सी ऐसी आवाजें आती हैं, पर समझ नहीं आता, पहचान में नहीं आता कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है। That is why we are telling you, first thing in the morning, you have a quiet time, read the Bible, meditate, pray to God. इसीलिए हम कहते हैं आपसे कि आप सुबह उठ के ये परमेश्वर का पवित्र वचन को उठाइए और इसको मनन करिए, और फिर आपको मालूम लगेगा रोज आप परमेश्वर की आवाज को पहचान लेंगे। So to find God's will, you have to apply all the principles. और इसीलिए परमेश्वर की इच्छा को समझने के लिए अपने जीवन में ये कही हुई ये सारी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक देखने की जरूरत है। When you do that, जब आप ऐसे करेंगे, we will understand God's will. हम परमेश्वर की इच्छा को Which समझ channel? अनंत काल का, NDTV or Times Now or CNN? और No. अगर ऐसे कोई एनडीटीवी, CNN ऐसे किस प्रकार के जो चैनल आते हैं। Yeah, there are so many channels in this world. हाँ, इस दुनिया में बहुत सारे चैनल टीवी में आते हैं। Through which channel you will know God's will? कौन से चैनल से हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेंगे? Oh, Bible, I see. और एक चैनल है, वो है बाइबल। God is telling His will through His word only. परमेश्वर अपनी इच्छा को उसके पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र से बताते हैं। God will not do anything contrary to what He already said in the Bible. परमेश्वर और कुछ भी नहीं करेगा, जो कुछ परमेश्वर ने इस पवित्र शास्त्र में बोल चुके हैं, उस वचन के जरिए ही वो इंसान के उन्नति के लिए कार्य करेगा। You see, every day as you read and meditate and apply the word of God, God will tell you about you, your marriage, your studies, your job, your work, everything, ministry also. और अगर आप सुबह उठकर मनन करें ये वचन के साथ, तो उस समय परमेश्वर की इच्छा आपके पढ़ाई के संबंध में हो, आपकी शादी के संबंध में हो, आपके कारोबार के संबंध में हो, या आपकी सेवकाई के संबंध में हो, वो अपनी इच्छा आपके जीवन के मकसद के लिए पूरा करेगा। You see, the Bible very clearly says, you search in the word of God, you know, you will find everything there. और परमेश्वर का वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के वचन को खोजते रहो
और उसको देखते रहो, और जो कुछ तुम्हें चाहिए है, जो कुछ तुम्हारे जीवन की इच्छा है, वो उसमें लिखा गया है। I'll tell you a verse in the Bible, that is Isaiah chapter 34 and verse 16. और यशाया उसका 34 का 16 में लिखा है। Isaiah 34 verse 16. यशाया 34 उसका 16 में लिखा है। Okay, what do we read there? क्या हम वहां पढ़ते हैं? यहोवा की पुस्तक से पूर्ण पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। Yes. ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से ये आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। Not one of these will be missing. कोई भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी। You search in the book of the law, that is God's word, Bible. क्योंकि बाइबल के अंदर आप इसको खोजते रहें। Now, the second channel is you get a confidence in prayer. और दूसरा जो चैनल है वो है आपको अपने प्रार्थना में भरोसा रखना है। Now, suppose when before you eat, what do you say? You say a prayer, isn't it? आप कोई भोजन करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं? एक छोटा प्रार्थना करते हैं। Okay. But before you are smoking a cigarette, will you pray, Lord, let me smoke this cigarette for your glory? Amen. Will you say? क्या आप सिगरेट पीने से पहले प्रार्थना करते हैं, जी हाँ जी ये मैं सिगरेट पी रहा हूँ प्रभु आपकी महिमा के लिए, ऐसा कोई करते हैं? No, you cannot. वो आप करेंगे भी नहीं। Or you say, Lord, I am going to see the film of some films. Lord, I am going to see that film for your glory. Bless me when I see that. All the commercial films. क्या आपने ऐसे प्रार्थना किया कि प्रभु जी मैं अभी एक मूवी देखने जा रहा हूँ, फिल्म देखने जा रहा हूँ, और उस फिल्म देखने से प्रभु मुझे आशीष देना, सारा बात आपकी महिमा, क्या ऐसे आप प्रार्थना करते हैं? Can you pray that? क्या ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं आप? Okay, film in itself is not bad, but there are so many bad films. और फिल्म अपने आप में बुरा नहीं है, पर फिल्म जगत में बहुत से बुरे सिनेमा होते हैं। Yeah, because Jesus film is there are good. It is a good medium, but the films which we have in the society, can we pray and see that? क्योंकि यीशु मसीह का जो फिल्म है और बाइबल के संबंधित जो फिल्म है बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि वहां से उसमें आत्मिक बातों को समझने की कोशिश होती है। पर संसारिक जो फिल्म है या संसारिक सिनेमा होते हैं, उस सिनेमा को देखने के समय हम क्या प्रार्थना करते हैं? Or you are praying for your marriage. और फिर आप अपने विवाह के लिए प्रार्थना करते हैं, शादी के लिए प्रार्थना करते हैं। And you like a girl or a boy. और आपको एक लड़की या एक लड़का पसंद आ गया। Can you pray like this? Lord, I like that boy or girl. I think he is or she is my partner. Give her or him to me. I pray. Can you pray that? क्या आप ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी वो लड़की वो खूबसूरत है मुझे पसंद है, या वो लड़का बहुत होनहार है पसंद है, प्रभु वो लड़का मुझे दे दे या वो लड़की मुझे दे दे? क्या ऐसे आप प्रार्थना करते हैं? You will not have any confidence in that prayer. I am sure about that. क्योंकि मुझे पक्का यकीन है आप अपने उस ऐसे प्रकार की प्रार्थना में आपको भरोसा नहीं होगा। Now we will read one verse that is very important. आइए आयत को पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आयत है। 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय verses 14. Sorry. Verse 14 and 15. But first you read 1 John, that is Epistle of John, chapter 5, verse 14. 14. Yeah. 14 में लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 14 और 15 में लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। Did you get that? If we pray according the will of the Lord, we have a confidence that God is hearing your prayer.
और वहां लिखा कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। So according to the will means according to the word of God. This is the will of God. परमेश्वर की इच्छा में मांगने का मतलब है कि परमेश्वर के ये प्रभु पवित्र शास्त्र के अनुसार मांगना। Yeah, if you pray according to God's word, that prayer will be answered. और परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आप मांगते हैं तो आपका वो प्रार्थना का उत्तर प्राप्त हो जाता है। So if you have that confidence, verse 15 says, अगर आपके पास वो भरोसा है यकीनन, तो 1 John chapter 5 verse 15. 5:15 में इस प्रकार लिखा है, हाँ। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वे हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। Yeah, we are sure that if you have the confidence that God is hearing your prayers, you can believe that God has given that, you know. और आप यकीन करते हैं अपने प्रार्थना में, जब आप प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार मांगते हैं, तो 15 में जिस प्रकार लिखा है उसी यकीन के साथ आपने जो भी कुछ मांगा वह मिल भी गया। This is the way you understand God's will. इसी मानिंद हम परमेश्वर की इच्छा को समझना है। Then there is a confirmation, the inner peace which the Holy Spirit gives you. फिर आपके अंदर पवित्र आत्मा जो आपको शांति देती है, वो हमारे सोचने और समझने के बाहर है। It's a perfect peace. और वो जो शांति है वो एक सिद्ध शांति है। So this goes in line. First, Bible, then confidence in prayer, then it is confirmed by the Holy Spirit's inner peace you get. सबसे पहले परमेश्वर का वचन, फिर जो है प्रार्थना, फिर वो यकीनी वाला भरोसा, फिर हम देख सकते हैं कि वो जो शांति जिसकी हमें जरूरत थी, जो पवित्र आत्मा हमें देता है, वो हमारे हृदयों में, हमारे मनों में वास करता है। So this must go in the right order. Okay? ये जो परमेश्वर की इच्छा, ये सही रीति से हमें हर एक तरीके से ये जाना चाहिए। So before we close, we want to tell something more. इसलिए अभी यहाँ समाप्त करने से पहले हम कुछ और बातें कहना चाहेंगे। There are some preconditions. यहाँ कई हमारे शर्त रखी गई हैं कई। First, you must be God's child. सबसे पहली शर्त है आपको सबसे पहले परमेश्वर के संतान होना है। Then only God will tell His will for you. तभी वो अपने संतान से ही अपनी इच्छा को जाहिर करता है। You know, for anybody who doesn't receive Jesus, the first thing is he has to become the child of God. That is why we said in the beginning, God's purpose. Lesson 1 is you have to have salvation. और इसीलिए हम कहते हैं जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह का संतान नहीं हुआ, उनको यही हम बताते हैं कि सबसे पहले वो आप प्रभु को ग्रहण करें और उसके बाद ही वो आप परमेश्वर की इच्छा को आप लोग जान सकते हैं। The second condition is दूसरी शर्त यह है you must be doing what God wants you to do. और दूसरी शर्त है आप वही बात करना है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। For example, if you are saved, और उदाहरण के तौर पे आप उद्धार पा लिया है, बच गए हैं, the Bible says you have to be baptized. और बाइबल कहती है कि आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। If you are saved and got baptized, you have to go to the church. Nowadays it is different, but you have to have fellowship with the believers, break the bread. All these things you have to do. और अगर आप बचाए गए हैं, उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिए हैं, और अगली बारी जो शर्त है कि वो आपको संगति करने के लिए कलीसिया में जाना। आज के समय में कलीसियाएं बंद हैं, फिर भी संगति किनके साथ करना है? विश्वासियों के साथ करना है। रोटी तोड़कर, आराधना कर कर, स्तुति और प्रशंसा करते हुए आगे बढ़ना है। So doing what already you know. और आपको मालूम है जो आप वो कर रहे हैं और उसको प्रभु के इच्छा के अनुसार करें। Now, for example, if you are saved, आप उदाहरण के तौर पे आप उद्धार पाया है, you know it, you have to get baptized. और आपको मालूम है कि आपने उद्धार पाया तो आपको बपतिस्मा लेना है। Maybe you are ashamed. What will my friends say? Something like that. अगर आप ऐसे सोचे, अरे मेरे दोस्त मित्र या मेरे रिश्तेदार क्या करेंगे अगर मैं बपतिस्मा लूं तो। So if you are not obeying, then you are praying, Lord, help me to know your will about my studies, my marriage. God will not answer that prayer.
अगर आप ये बपतिस्मा या प्रभु का पहला हुक्म को पूरा नहीं करते और बाद में आप प्रार्थना करते, प्रभु जी मुझे आप मदद करें, आपकी इच्छा को जाहिर करें मेरे पढ़ाई में, मेरी शादी में, ये कुछ भी सुनने नहीं, कुछ भी उत्तर नहीं मिलेगा प्रभु से। If you are not obeying your parents in the will of the Lord, in the Lord, की इच्छा के अनुसार आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी नहीं होते, if you pray, God will not answer. और उसके बावजूद आज्ञाकारी ना होते हो, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा। So, did you get my point? Whatever you know up to this time, you have to do that. Then God will tell you the next. जो बातें अभी आज हमने यहाँ बताई हैं, अगर इस बातों को आप करते हैं, फिर ही आगे की बात के बारे में हम प्रभु करेगा और उसके बारे में सोचेंगे। So we can put this in this way: knowing God's will is doing God's will. जो भी परमेश्वर की इच्छा करना चाहता है, Whatever you know, you have to do that. Then the Lord will tell you the rest. और जो परमेश्वर कहता है वो अगर आप समझ गए और वो करते हैं, उसके बाद परमेश्वर आपसे कहेगा कि ये आगे की मेरी योजना है। So before we close, we want to tell a promise. और यहाँ समाप्त करने से पहले एक वायदा हम करना चाहेंगे। What is that promise? क्या है वो वायदा? Psalms 25 verse 14. भजन 25 उसका 14 आयत। All young people, you have to learn it by heart. जितने भी जवान हैं, ये बाय हार्ट ये मनन करना है। Yeah, Psalm 25 verse 14. It's a great promise. और ये बहुत बड़ा एक वायदा है। भजन संगीता उसका 25 का 14 में लिखा है। Can you read, brother? यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। To them only God will share his secrets. और प्रभु अपने भेदों को उन्हीं से ही बांटेगा जो उससे डरते हैं। In one simple translation, it is like this. एक दूसरे अनुवाद में इस प्रकार लिखा है, Friendship with God is reserved to those who fear him. और परमेश्वर के साथ दोस्ती करना वे ही कर सकते हैं जो परमेश्वर से डरते हैं। To them alone, God will share his secrets. उन्हीं से ही परमेश्वर अपने भेदों को बताता रहता है। How will you share your secrets? कैसे अपने भेदों को प्रकट करेंगे? Maybe you go to the marketplace in Mahilpur and say, "Hello, everyone, I have a secret." You will not tell that, isn't it? मार्केट में, बाजार में जाके ऐसे हाथ खड़े करके सुनो मेरे भेद को सुनो, ऐसे बोलेंगे? If it is your close friend, you will tell only in his ear, no? Nobody others will hear. आप अपने भेद को आपके अच्छे सहेली या आपके अच्छे दोस्त, गहरा संबंध, उसी से आप धीरे से बोलोगे। If you are a friend of God, God will tell you the secret: whom to marry, which subject to study, where to go, where to do the ministry. Everything God will share. अगर आप परमेश्वर के अच्छे मित्र बन जाते हैं तो परमेश्वर धीरे से आपको सारी भेद बताएगा, कैसे करना है, कैसे जाना है, कहाँ सेवा करना है, वो सारे प्रभु अपने अपने भेद बताता जाएगा। You see, Moses was God's friend. क्योंकि आपको मालूम है मूसा परमेश्वर का एक अच्छा मित्र था। Abraham was God's friend. अब्राहम जो था वो भी परमेश्वर का बहुत अच्छा मित्र था। All these God's people, they are having friendship with the Lord. और जितने भी पुराने नियम में जितने प्रभु के दास और भविष्य, वो सब के सब अच्छे प्रभु। All Peter and all his disciples. Even now, if we have friendship with God, he will tell you the secrets of your life. और जितने भी प्रभु के दास और चेले और जितने भी प्राचीन आए, वो सब के सब अच्छे मित्र थे। और आज के समय में अगर हम उसके अच्छे मित्र बन जाते हैं तो आपको परमेश्वर अपने भेदों को बताता रहेगा। One example I tell you. एक और उदाहरण बताना चाहता हूँ। One day Abraham was God's friend, no? आपको मालूम है अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। Every day he took quiet time, okay? हर दिन वो मनन करते थे सुबह। One day Abraham was in the presence of God. एक दिन परमेश्वर के हुजूरी में अब्राहम थे। Then God said, "Abraham, you are my friend, no?" और परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू मेरा मित्र हो ना। This really happened. If you want to read, you go to Genesis chapter 18.
अगर मैं ऐसे नहीं बोल रहा, आप जा सकते हैं उत्पत्ति उसका अध्याय chapter 18, verse 22 onwards. Anyway, yeah, I imagine like that, no? 18 का 21-22 देख सकते हैं। मैंने ऐसे सोचा, ख्याल किया, You can read later on. आप बाद में पढ़ सकते हैं 18 के 21-22 में। See, in that chapter, God is telling, see, my friend Abraham, प्रभु कहते हैं, my friend Abraham, मेरे मित्र अब्राहम, I want to tell you a secret. मैं आप तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ। See, the people in Sodom and Gomorrah, they are very bad people. I am going to destroy it. देखो वहां सोदोम गुमोरा में देखो कितने बुरे और पापी लोग, मैं उन्हें नाश करने जा रहा हूँ। Then what Abraham was telling? आपको मालूम है अब्राहम ने परमेश्वर से क्या कहा? You see, when you read from 22 till verse 33, Abraham is talking like a friend to God, and God is talking to Abraham like a friend. आप देख सकते हैं अब्राहम और परमेश्वर का वार्तालाप देख सकते हैं, जैसे एक दो मित्र आपस में बात करते हैं वैसे हैं। 22 से लेके 23-33 तक आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें दिखते हैं। Abraham is telling God, if there are 50 righteous men, will you destroy it? और अब्राहम क्या कह रहा है? अगर परमेश्वर, अगर 50 लोग वहां बचे हैं तो आप उसको छोड़ दोगे? God said no. Then he said, if 5 people are less, will you destroy it? और बाद में आखिर में जब वो क्या कहता है, प्रभु जी अगर आप परमेश्वर अगर 5 लोग हैं तो आप उसको छोड़ दोगे उस देश को? Then he talks about 40, like that he comes down. You know, it is friends talking. और वो कहते कहते वो नीचे, उसकी गिनती नीचे आती गई। Finally, in 32, he says, Lord, let me, because we are friends, you know, let me tell you one thing. If there are 10 righteous people, will you destroy? और 33 में लिखा, आप प्रभु जी अगर आप वहां 10 जने अगर धर्मी हो तो क्या आप उसे बर्बाद कर दोगे? God said, I will not destroy if there are 10 righteous people, but there were not. परमेश्वर ने कहा अगर 10 धर्मी पुरुष, धर्मी व्यक्ति है तो मैं उसे नहीं नाश करूंगा। Because God's friend Abraham pleaded for Lot and family, God saved some people and destroyed everything. See, God is telling the secret to Abraham. और देखिए परमेश्वर अपना भेद अब्राहम को बता रहा है। वो अब्राहम लौत और परिवार के लिए व्याकुल हो रहा था। लौत और परिवार बच के बाकी सबको वहां परमेश्वर ने नाश कर दिया। Oh, God's promise that if you are a friend of God, God will share all his secrets. You know, this is the way we have to understand specific will for you. That is God's purpose for your life. यहाँ परमेश्वर का मकसद हमारे जीवन में, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होना है तो हमें परमेश्वर का मित्र बनना है। अगर हम परमेश्वर का मित्र बन जाते हैं, परमेश्वर अपने भेदों को हमसे जरूर बांटेगा। May the Lord bless each one of us. परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। And thank you for this time. God bless you all. और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद ये समय के लिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर संदेश के लिए, जो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है, हमने अपने प्रिय भाई थॉमस मैथ्यू से सीखा। भाई जॉनसन, We have from brother Thomas Matthew about the will of God and the purpose of God in our life. मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे जवान और जितने भी अपने बच्चे हैं अडल्ट, उन्होंने इस वचन को समझ लिया होगा। And I truly believe that those who are youngsters and teenagers, they have listened and they have been blessed by this word of God. कैसे हम अपने जीवन को बचा सकते हैं और किस प्रकार हम अपने जीवन में परमेश्वर के उद्देश्य को जान सकते हैं और कैसे हम परमेश्वर के मित्र बनकर उससे बातें कर सकते हैं। How can we really understand the will of God? How can the will of God can be exposed in our life, and how can we become a friend of God? धन्यवाद करते हैं भाई थॉमस मैथ्यू का, जिन्होंने ये सुंदर संदेश हमारे जवानों को समझाने के लिए दिया। We really thank God for brother Thomas Matthew for this word of God, that you have taken time and effort to explain this message to our youth and teenagers. आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना है।
there is a one important announcement for everybody. कल 7 बजे से 8:30 बजे तक फिर जूम लाइन में ऐसे ही मीटिंग होगा, पर वो गर्ल्स और लेडीज के लिए होगा। Tomorrow there will be a meeting for Zoom meeting from 7 to 8:30, and that meeting is especially designed for ladies and sisters, girls. सो कल हम इसी समय में अपना प्रभु के वचन के साथ बहन हमारे बीच में उन भाई थॉमस का पत्नी है ग्रेस थॉमस, उनके साथ इस वचन को सीखेंगे। And that session will be taken by our dear brother Thomas Matthew's wife, Sister Grace Thomas. Grace Matthew, she will be taking the session for all the sisters and teenage sisters, girls. इस सभा की समाप्ति की प्रार्थना हमारे बीच में भाई लेंटो थॉमस हैं, वो प्रार्थना सहित समाप्त करें। And we लेंटो will थॉमस prayer. We have brother Linto Thomas, and I ask brother to close this session with a prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस शाम का समय तेरा दासों का द्वारा आपका वचन हमारा हृदय तक पहुंचाया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप कितना महान कार्य हमारे जीवन में करता है। हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता का रूप में स्वीकार करना, ये सभी के लिए परमेश्वर का उद्देश्य है, और जो प्रभु को स्वीकार किया है वो परमेश्वर की इच्छा के आधार पर आगे बढ़ना भी प्रभु का वचन हमें सिखाता है। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर आपका दास थॉमस मैथ्यू को और आपका दास जॉनसन टाइटस को अनुवाद करने में भी प्रभु जी आपने सहायता किया। जो इस जूम मीट में प्लेटफॉर्म का द्वारा जुड़े हुए सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपने आपका दासों का द्वारा हमें बातें किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो वचन हम सुनते हैं उस वचन को अपना निज जीवन में अपनाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको सहायता कर। विशेषकर हर एक भाई बहन परमेश्वर का इच्छा को पूरी रीति से समझकर उसका आधा पर चलने के लिए प्रभु हम सबको सहायता कर, और परमेश्वर को संपूर्ण दिल से विश्वास करते हुए, भरोसा रखते हुए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हुए प्रभु सहायता कर। जैसे सुनने में और प्रभु का दास ने प्रार्थना के लिए बताया, कल इसी टाइम में भी आपका दासी के द्वारा प्रभु का वचन विशेष दौर से लेडीज और जो नौजवान लड़कियों का साथ बातचीत करना चाहता है, प्रभु जी सहायता कर। आपका दासी को भी और ट्रांसलेशन करने वाला जो कोई है उनको भी आप सहायता और मदद कर। और आज से भी बढ़कर बहुत सारे लोग इस मीटिंग में जुड़कर आपका नाम की महिमा करने के लिए हम सबको सहायता कर। प्रभु, आपका आना देरी है तो कल शाम को ऐसे ही इकट्ठे होने में प्रभु सहायता कर। वो नहीं तो प्रभु आपका आगमन आज है तो हम आपका साथ होंगे, उस उम्मीद हम सबको दिया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो आज वचन सुना है, अगर कोई अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उनका मन में कार्य करे, ताकि आज का वचन सुनने के कारण प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए हर एक भाई बहनों को सहायता कर। और जो प्रभु को स्वीकार किया है वो प्रभु का वचन का आधा पर आगे बढ़ते हुए प्रभु का महिमा के लिए जीवन बिताने के लिए, और खास तौर से हमने सुनने के लिए प्रभु ने मदद किया कि हम हर एक प्रत्येक जन का जीवन का द्वारा एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य ये है कि जिस परिस्थिति में है, जिस काम का द्वारा हम आगे बढ़ते हैं उसमें आगे बढ़े, और परमेश्वर को हर प्रकार की विधि से हम गवाह
देते हुए और दूसरों लोगों तक प्रभु का वचन को पहुंचाते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु जी सहायता कर। विशेषकर आज का वचन सुनने वाला और सुनाने वाला हर एक का जीवन में प्रभु कार्य होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अब हमारे प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी विनती एवं धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और मीठे और जलाली नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता।